This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you daily highlights of the 38th National Games 2025. 38th National Games, Uttarakhand. It's passed by in the blink of an eye, but we're already through a fortnight of India's premier multidisciplinary sports event, the National Games being held in the hallowed mountainous lands of Uttarakhand. From breathtaking falls to imposing rivers, from majestic mountains to humongous caves, this state has everything on the platter for the traveller. And the National Games also has a full plate for the sports lover. Everything from the thrill of canoeing to the brilliance of track and field, from the ferocity of wrestling to the finesse of table tennis. A very good evening and welcome to our daily highlights of the 38th National Games. You are with Shaurya Chaudhary. Today was a day that provided a full course for the sports lover as the first medals in one of India's favourite sports, wrestling, was decided. Gymnastics had multiple medals on offer while tennis reached its finale. Let's start off. To the jaw-dropping flexibility of gymnastics at the Bhagirathi Hall in Maharana Pratap Sports College. Medals cutting across disciplines such as trampoline and acrobatics were up for grabs. Khurshid Ahmed gives us this finely balanced report. The final day of acrobatics gymnastics saw an utter dominance of Maharashtra on the floor. Out of 5 gold medals of acrobatics, Maharashtra clinched 4. Maharashtra's saga began with women's pair event. In this event, Nikshita Suresh Khallare and Rutuja Dattatreya Jagdale scored 51.250 points. Here is Rutuja. बहुत खुशी हो रही है. लास्ट ईयर भी हमें गोल्ड मेडल मिला था, बट इस टाइम थोड़ा कंपटीशन टफ था, बट हमें जो अपना करके आए हैं वो बेस्ट देना था और हमने वो बेस्ट दिया और आज उसका नतीजा गोल्ड मेडल में बदल गया. तो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड. In acrobatics mixed pair event, Riddhi Sachin Jaiswal and Shubham Sunil Sarkate of Maharashtra clinched a gold. Here is Riddhi. अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल मिला था. एक्चुअली मुझे इंजरी था, उसके बाद भी मैंने किया और मुझे सपोर्ट मेरे कोच ने और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा किया, मॉरली भी और सारी चीजों को लेकर. तो उसको फेस करके अब गोल्ड लेना, इट्स टोटल एक्सपीरियंस. In the men's acrobatic gymnastics group competition, the team of Maharashtra comprising Naman, Prashant and Ritesh got the gold. In the women's group event too, Maharashtra clinched the gold. The team comprised of Akshata, Arna and Sonali. Sonali Borade declared her retirement just after getting this milestone. We just finished our final routine and we are on top position and we are the second time consecutively gold medalist in our event. I am happy to say that I am taking retirement from now acrobatic gymnastics and next year I will be a judge for the acrobatic gymnastics. After the completion of acrobatics, the finals of trampoline gymnastics took place. In men's category, Maharashtra's Ayush Sanjay became the champion. बहुत अच्छा लग रहा है, पर आई फील दैट कि इससे बढ़िया कर सकता हूँ मैं और मैं करना भी चाहता हूँ. In women's trampoline event, it was Shaikh Yasin of Andhra Pradesh who had the last smile. मेरे को बहुत खुश हो रहा है. मैं लास्ट टाइम भी मैं मिस किया था गोवा नेशनल गेम्स में. मेरे को कभी का ख्वाहिश था गोल्ड लेने का. सीनियर्स में आ रहा है बट नेशनल गेम्स में मैं सिल्वर पे ही रुक रही हूँ. तो अभी गोल्ड आया, मेरे को बहुत खुश है. The parade ground is a historic landmark of the city of Dehradun and was hosting both tennis and table tennis simultaneously today. However, most eyes were glued to the tennis courts where the mixed doubles, men's singles and women's singles finals were taking place. Who aced them? Anupam Pathak tells us. आज सेंटर कोर्ट पर शानदार टेनिस देखने को मिली. तेज तर्रार मैराथन मैच, शानदार शॉट्स और बिन बुलाई गलतियां. अंतिम दिन 3 स्वर्ण पदक दांव पर थे. पहले बात सुपर रोमांचक और पल पल बदलते पुरुष एकल फाइनल से. गुजरात के देव जविया ने शानदार शुरुआत की, पहला सेट जीत लिया. इशहाक इकबाल ने वापसी की और तीसरा सेट घड़ी के पेंडुलम की तरह हो गया. अंततः टाई ब्रेक की ओर. उसमें इशहाक 1-5 से पीछे, लेकिन फिर उन्होंने देव के पंजों से ये मैच छीन लिया. कभी कभी हो पाता है और इतने बड़े इवेंट में 1-5 डाउन टाई ब्रेक से मैं जीत पाया हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और मेरी किस्मत में लिखा था शायद कि आज मैं जीतना है. देव की खतरनाक सर्व पर उनकी राय. देव ने कुल 15 एस लगाए. जब भी लेफ्टी से खेलते हैं तो लगभग सबको ही स्ट्रगल करते हैं रिटर्न करने में और उसने काफी अच्छी सर्व मारा था पहले 2 सेट में. देव थके दिखने लगे थे, लेकिन इशहाक उतना थके हुए नहीं दिख रहे थे. थक तो मैं भी रहा था, पर वही है कि मैं दिखा नहीं रहा था कि मैं थक रहा हूँ. अंतिम क्षण में देव अपने मनोभावों पर नियंत्रण नहीं रख सके. आज बहुत खराब था, इसी वजह से थोड़ा बहुत खुद से नाराज हूँ. फिर थर्ड सेट में नहीं कंट्रोल रख पाया और इमोशंस बाहर आ गए. इसके पहले हुए मिश्रित युगल में तमिलनाडु के लोहित अक्ष और लक्ष्मी प्रभा ने कर्नाटक की मजबूत जोड़ी निकी पोनाचा और सोहा सादिक को
हराया। लोहित। In doubles, it's more about the energy, how much energy you show. So we were very keen on showing energy, and I made sure that happened. मैच के बहुत पहले से बहुत देर तक वार्म अप करते रहे थे दोनों। कारण क्या था? I just have to warm more. That's it. Yeah, because we normally we're from Chennai as well, so like conditions there are pretty hot and we're warm soon. Yeah. Here it's cold for us, so we'll have to do the extra bit so that we can be warm. आइए निकी से बात करें। They played good. They're a strong team. They played better than us today. निकी भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। अपना अनुभव बताते हुए। It's good because we get to learn a lot from them. Rohan Bopana, Leander Price and everything. So they advise us whenever we go, makes us feel like okay, you're important and like you can do it. So I think that's the important thing. महिला एकल में गुजरात की वैदेही चौधरी ने कल के बाद आज फिर स्वर्ण पदक जीता। आज महाराष्ट्र की वैष्णवी अडकर को हराकर। पहली टीम इवेंट में हम सिल्वर जीते हैं और मैं वैष्णवी से ही हार चुकी थी, तो इस बार तो मुझे जीतना ही था। प्राउड हो रहा है। 3 दिन बाद जन्मदिन है उनका, तो ये हुआ उनका खास तोहफा। सारी दुनिया सेलिब्रेट करती है, वैसे किसी और चीज के लिए सेलिब्रेट करती है। उस दिन वैलेंटाइंस डे आ रहा है, बट उसी दिन मेरा बर्थडे आता है। अच्छा भी लगता है और लोग मेरा बर्थडे वैसे भूलते भी नहीं है। It was a busy day at the Ganga Athletics ground as medals were on the line in the 200-meter sprints and race walks, among others. Running around the track for us was Temjen Tiba. The 38th National Games 2025 continued its exciting athletic competition at the Ganga Athletic Ground in MPSC Dehradun with a thrilling morning and afternoon session showcasing remarkable performances. The morning session kicked off with the men's 20-kilometer race walk where Servan Sebastian of the SSCB clinched the gold medal, setting a new national record with a time of 1 hour 21 minutes 23 seconds. वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चक्कर पे आया था सर, वो अभी नहीं होगा। अभी वॉकिंग चैंपियनशिप में अच्छा करूंगा सर अभी। Suraj Banwar from Uttarakhand secured the silver, while Amanjot Singh from Punjab took home the bronze. In the women's 10-kilometer race walk, Ravina from Haryana dominated the event, winning the gold and setting a new national games record with a time of 45 minutes 52 seconds. I feel very good. Shalini from Uttarakhand earned the silver and Munita Prajapati of Uttar Pradesh claimed the bronze. The afternoon session commenced with the men's hammer throw, where Tanvir Singh Bains of SSCB emerged victorious, winning the gold. Damnit Singh from Punjab bagged the silver and Pravin Kumar from Rajasthan secured the bronze. In the women's 800-meter relay final, KM Janda from Delhi sprinted to gold. Feeling very nice. While Twinkle Chaudhary and Amandeep Kaur, both from Punjab, clinched the silver and bronze medals respectively. The men's 200-meter run was another highlight, with Anamish Kajur from Odisha taking the gold. Rakul Kumar and Nitin from Tamil Nadu secured the silver and bronze respectively. In the men's 800-meter relay, Mohammad Afsal from SSCB led his team to victory, winning gold. Anu Kumar of Uttarakhand took the silver and Prakash Gaddadi of SSCB bagged the bronze. Finally, in the men's triple jump, Pravin Chitravel and Mohammad Salahuti, both from Tamil Nadu, claimed gold and silver, while Mohammad Mohassin of Kerala secured the bronze. The competition was fierce, with athletes giving their all to achieve podium finishes in every event. As the athletics portion of the games nears its conclusion, anticipation is high for the final day's thrilling races tomorrow. Mountain biking has flourished in this difficult terrain. Today it was Muammar Imsong's turn to visit the scenic Sat Tal and give us a flavour of the action. It was the final day of the mountain bike cycling event at Sat Tal. Today the cross-country Olympic competition, or XCO as it is called in short, was held. With sharp turns, steep climbs and technical descents, this XCO race was as much about strategy as it was about speed. The race featured a 2.8-kilometer course lap with a total of 7 laps in the women's competition and 9 laps in the men's race. From among the 28 participants who started the race in the women's competition, it was Maharashtra's Pranita Soman who won the gold. It was a hard race for me as it was XCO, a little longer race than yesterday. मतलब मुझे जितना लगा था उससे टफ था ये गोल्ड के लिए फाइट, but I think I gave my best and I'm happy for that. Star Narzari of Karnataka won the silver medal. Little bit of disappointed because of technical issue, but yeah, that's okay. Everyone has some bad day. Came silver medal, it's okay. Better next time. I'll do my best to win the gold medal. Rutika Gaikwad of Maharashtra won the bronze medal. अच्छा लग रहा है, हमारा एसोसिएशन ने हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और मिनी ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारा साथ दिया, तो अच्छा लग रहा है कि हमने मेडल भी लेकर आए.
In the men's competition, there were altogether 41 athletes participating in the race. Kushiman Gharti of Services won the gold medal. Track is totally difficult. Like every section, like there is so loose stone. That's why it gets so slippery. I secured 2 gold yesterday also, today also. So I feel so proud. Shivan of Haryana came in second to claim the silver medal. To win a medal here with the top riders, it's a really great achievement for me. I feel great. While the gold and silver medals were won comfortably, it was the bronze medal that saw all the action as Kamlesh Rana of Services edged out Kharak Singh Adonis of Manipur just at the finish line to win the bronze medal by 0.01 microseconds. मुझे पता था कि आगे का कोई ना कोई मतलब रेस है तो कुछ ना कोई टाइट होगा या कुछ गड़बड़ होगी, किसी की मिस्टेक होगी, वही मैं लास्ट के 2 लैप में खींचा, बस कवर हो गया था. Men and women skeet shooters were sharpening their aims in the 75 targets qualifying in Rudrapur. Pratishtha Jain reports. आज रुद्रपुर में स्कीट शूटिंग के क्वालिफाइंग मुकाबले आरंभ हुए. इस आयोजन के बारे में बताते हैं डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन अशोक मित्तल. रेंज बिल्कुल प्रॉपर है, परफेक्ट है, वेदर भी अच्छा है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, गवर्नमेंट एक अच्छा जो है ना शो कर रही है. देश के जो टॉप खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं. मेंस कैटेगरी में ओलंपियन अनंतजीत सिंह नरूका 74 आउट ऑफ क्वालिफाइंग 75 टारगेट्स के स्कोर के साथ लीड पर हैं. आज अच्छा दिन था मेरा, शॉट अ गुड स्कोर ऑल्सो. 3 राउंड अच्छे हुए. अब कल के मैच के लिए देखते हैं क्या है, 2 राउंड और बचे कल. वहीं विमेंस कैटेगरी में ओलंपियन राइजा ढिल्लों अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं थी. My performance could have been a little better. I've been doing 3-4 competitions back to back. Of course a little fatigue है, थोड़ी tiredness है, but I wanted to enjoy my performance and one round didn't go up to my expectation, but I'm happy. इंटरनेशनल मेडलिस्ट गनीमत सेखों की नजर गोल्ड पर ऐसे टिकी है कि उन्होंने आज कोई भी टारगेट मिस नहीं किया. बहुत अच्छी रेंज है यहाँ पे. रेंज जब अच्छी होती है तो शूटिंग भी अच्छी होती है. तो आज शूटिंग अच्छी हुई थी, एंजॉय करा था, वेदर भी अच्छा है. कल भी सेम ही तैयारी रहेगी और कल भी एंजॉय करेंगे. शूटिंग रेंज में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला. पिता और बेटी एक ही कंपटीशन में एक साथ भाग ले रहे हैं. पिता परमपाल सिंह. This is the first time it is there that daughter and a father pair has come. Basically both of us compete with each other. As a father and an ISSF coach, good things start from your home. अपने पिता को इंस्पिरेशन मानती हैं रेशम. Like it gives me goosebumps that I've come here with my father. Like he's been shooting since so long now. So it's pressure, but it's good pressure. पिता से अच्छा परफॉर्म करने के बाद रेशम. In PE team, I had dangled a bit, but this time it's fine, and I'm happy with that. अमरिंदर सिंह चीमा आज नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के स्कीट के सीनियर टीम के कोच नियुक्त हुए हैं. कैसी रही रेंज पर उनकी परफॉर्मेंस? मेरा कंस्ट्रक्शन का फेज चल रहा है और अब मैं कोचिंग की तरफ जा रहा हूँ, पर मैं पंजाब के लिए पूरा फाइट कर रहा हूँ इस वक्त. अब 69 का मेरा स्कोर है आज का, और कल के मैच पे 2 राउंड पड़े हैं, उसमें मैं सिक्योर करने की कोशिश करूंगा. कल स्कीट के बाकी क्वालिफाइंग 2 राउंड्स के बाद फाइनल्स के मुकाबले होंगे. From netball traditional to netball fast 5, there has been a change of formats at the Kanchenjunga Hall, but no let up in excitement. Vigneshwar was our man on the spot. For the game of netball at Kanchenjunga Hall, Maharana Pratap Sports College, it was a jam-packed day with matches happening back to back. The day started very early, and towards the afternoon, with the league matches ending, it was Haryana, Kerala, Rajasthan, Jammu and Kashmir in men's category and Haryana, Punjab, Telangana, Assam in women's category topped their respective groups and entered the semi-finals. After getting qualified for the finals as the first team, Haryana men's team captain Mr. Sachin. हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, फाइनल में पहुंच गए. हर एक टीम जो टूर्नामेंट में एंट्री करती है उसका लक्ष्य होता है कि फाइनल में पहुंच के और पदक हासिल करना, और हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं. ये नेटबॉल एक टीम गेम है, इसके लिए टीम की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि कौन प्लेयर कैसे कहाँ खेलेगा, स्लो करना किस टीम के खिलाफ कैसे खेलना है, अलग अलग टीम के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनती है. After winning a thrilling match against Punjab, Haryana women's team captain Mahi. Basically, I play goal defense in the team, and of course, we are feeling very happy that we are in the finals. जो मेहनत हम लोग कर रहे थे पिछले 3 महीनों से वो रंग ला रही है कि हम लोग फिर से फाइनल्स आए. ट्रेडिशनल की तरह हम लोग अब की बार फाइनल्स में जा रहे हैं. अभी of course, our shooter is the best shooter. We have good defenses also with us. We are going to play it man to man, sticking with the men's and short passes out. In the other 2 semi-finals, it was Telangana women's team completely dominating over Assam, and Kerala's men's team made a decisive win over Jammu and Kashmir. When asked with Kerala's men's team player Agil, so we are all very happy to enter in the finals. We hope to crown in this tournament. Our tactics and play game style. Haryana is a strong opponent. They have shooters like us also. Our strength is our shooters and our defense and our tactics. So we believe in that and we will win the tournament. For the finals, it was Haryana with Kerala in men's and Haryana with Telangana in women's category. Final matches of both men and women were scheduled late night today.
It was an important day at Tahri Lake as well, as several medals were being raced for in canoeing and kayaking. Dilip Jha tells us what happened. आज टिहरी झील में 3 दिवसीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। पहले दिन का पहला इवेंट था पुरुष वर्गों में K1 1000 मीटर रेस के लिए, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया। इसमें उत्तराखंड के प्रभात कुमार ने प्रथम स्थान लेकर के स्वर्ण पदक जीता। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के L नौचा सिंह ने रजत और दिल्ली के दीपक कुमार प्रजापति ने कांस्य पदक जीता। प्रभात कुमार क्या कहेंगे अपने इस जीत पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत के। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के L नौचा सिंह अच्छा लग रहा है और ट्रेनिंग जो हमने करके आया वो परफेक्ट कर पा रहा है, लेकिन थोड़ा रिजल्ट में सेकंड प्लेस में आ गया मैं। दूसरा इवेंट कैनो स्प्रिंट के ही C1 1000 मीटर के लिए हुआ, जिसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के PH ज्ञानेश्वर सिंह ने स्वर्ण पदक, मध्य प्रदेश के अरविंद वर्मा ने रजत और हरियाणा के हर्ष ने कांस्य पदक जीता। PH ज्ञानेश्वर सिंह ये नेशनल गेम्स की तैयारी हम टेरी में कोतेश्वर में एक आदमी खोला था, इसकी वजह से नेशनल चैंपियनशिप इधर उसमें भी गोल्ड जीता। अरविंद वर्मा फिलहाल अभी सिल्वर मेडल आया है तो बहुत खुशी हो रही है। महिला वर्ग के C1 में 200 मीटर के लिए प्रतियोगिता हुई। इसमें उत्तराखंड के मीरा दास ने स्वर्ण पदक, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के L नेहा देवी ने रजत पदक और उड़ीसा के रश्मि साहू ने कांस्य पदक जीता। कल इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और कल 8 प्रतियोगिताएं विभिन्न टीमों के बीच आयोजित की गई हैं। Yesterday, the team events of the table tennis competition reached a thrilling finale. Today, some of the top table tennis exponents of the country went back to battle again in the singles and doubles events of individual competitions. At tableside for us was Shahid Azmi. देहरादून के परेड ग्राउंड पर खेली जा रही टेबल टेनिस की स्पर्धा में आज मिश्रित युगल और महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, साथ ही एकल मैच भी खेले गए। मिश्रित युगल में पश्चिम बंगाल का वर्चस्व देखने को मिला। महाराष्ट्र का भी दबदबा बरकरार है। महाराष्ट्र के चिन्मया सौम्या और रीत ऋषिया ने दिल्ली की जोड़ी प्रयास जैन और गरिमा गोयल को 3-1 से हराया। चिन्मया कहते हैं, हम लोग का पहला मैच था, बट आई थिंक आगे हम लोग अच्छा खेलेंगे। अभी हम लोग को समझ आ गया कि कैसे क्या फिगर आउट किया। उधर महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल की खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। मैच के बाद स्वास्तिका, आज का मैच अच्छा रहा, अभी हम क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं तो अच्छा लग रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की दिग्गज मोहम्मद दास और आहिका मुखर्जी को दिल्ली की गरिमा गोयल और वंशिका मौदगिल को हराने के लिए पसीना बहाना पड़ा। मोहम्मद दास कहती हैं, अभी क्वार्टर्स महाराष्ट्र के साथ है, वो दोनों वो ओपोनेंट बहुत ही अच्छे, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे अच्छा जीतने के लिए। Handball action had meandered to its zenith today at the Shivalik Hall in Rudrapur, with medals awaiting the champions on the finish line. Nitish Arora gives us all the details. हैंडबॉल कंपटीशन का आज आखिरी दिन। पहला मैच महिलाओं का ब्रोंज मेडल राजस्थान और हरियाणा के मध्य। राजस्थान मैनेज टू क्लिंच द ब्रोंज मेडल विद स्कोर ऑफ 26-23 अगेंस्ट हरियाणा। कैप्टन आरती, सेटिस्फाइड है, मेडल होता है सर, कोई सा भी हो। हमने सोच के कोई मेडल लेके जाएंगे इस बार और हमने वो कर दिखाया। दूसरा मैच पुरुष वर्ग में ब्रोंज मेडल के लिए लोकल टीम उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बीच। उत्तराखंड ने मध्य प्रदेश को 41-26 के स्कोर से हराकर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का कांस्य पदक अपने नाम किया। कोच सुनील पाठक, बहुत अच्छी टीम बनाई, प्रॉपर उनके कैंप लगाए, इस कारण हम ये आज मुकाम पे हैं। फर्स्ट टाइम हमने ब्राउन जीता है, ये हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री है। तीसरा मुकाबला महिला हैंडबॉल का गोल्ड मेडल मैच। जबरदस्त फॉर्म में चल रही हिमाचल प्रदेश को चुनौती देने फाइनल में पहुंची थी टीम हरियाणा। टीम हिमाचल ने रोलिंग सब्स्टिट्यूट का जबरदस्त इस्तेमाल किया। अटैक, गोल एंड सिट पेयर्स में फॉरवर्ड अटैक करते, बॉल को गोल में डालते ही वापस सिटिंग टू कंजर्व एनर्जी टिल सेकेंड पेयर कम्स बैक। प्लेयर्स की पूरी एनर्जी बरकरार। स्कोर हिमाचल 45, हरियाणा 36। तो गोल्ड मेडल टीम हिमाचल प्रदेश। ये तो हमारे कोच की स्ट्रेटेजी थी कि जो हमारा मेन अटैकर है उसको हम लोग अटैक करने के बाद थोड़ा रिलैक्स दे, इसलिए बाहर का प्लेयर जो अंदर आ रहा था वो अपना अटैक में ज्यादा दे पा रहा था। तो हिमाचल ने जो बोला था वो कर दिखाया। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि गोल्ड हम अपने घर लेके जाएंगे और हम वही करके लेके जा रहे हैं। पुरुष हैंडबॉल्स में फाइनल्स में मुकाबला था टफ टीम्स के मध्य। सर्विसेज वर्सेज हरियाणा, जबरदस्त एक्शन पैक्ड फाइनल्स। जीत सर्विसेज के पक्ष में। सर्विसेज के कोच नेहा चंद्र, 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड ने काफी अच्छे ऑर्गेनाइज किए हैं और सर्विसेज टीम की तरफ से हमारी सर्विसेज टीम जो है काफी अच्छा प्रदर्शन किए। यहाँ पे हमने काफी मेहनत करके आए थे, जैसे चाहता था वैसे ही गेम हुआ। तो पुरुष हैंडबॉल में स्वर्ण सर्विसेज, सिल्वर हरियाणा और ब्रोंज उत्तराखंड। तो 5 दिन तक चले रोमांचक हैंडबॉल मैचेस पर आज पर्दा गिर ही गया, युवा दर्शकों पर इस खेल की एक अमिट छाप छोड़कर।
And now to the scenic Shivpuri beach, where beach kabaddi continues its enthralling run. Florine Roche and Saubhagya Rath join forces for this dispatch. Uttarakhand, Haryana and Uttar Pradesh have assured at least 2 medals each in beach kabaddi, having qualified for the semi-finals in both men's and women's categories. In the men's semi-final, Pool A topper Rajasthan will face Uttar Pradesh, while Haryana, which topped Pool B, takes on Uttarakhand. Both Rajasthan and Uttarakhand were already assured of semi-final berth in Pool A. Today's matches were to decide the pool toppers. In the first match in men's category today, Uttar Pradesh dominated Andhra Pradesh, winning 47-30 to book a place in the semi-finals. Uttar Pradesh team captain Nitin Pawar reflected on his team's victory. मैच बहुत अच्छा था, बराबर चल रहा था, बाद में हम अच्छा खेले तो हम जीत गए. वे अच्छा खेलते, हाफ टाइम के बाद तो वे जीत जाते. Andhra coach Satinder Kumar Mehla said his team failed to play according to the game plan. गेम प्लान था वो बच्चे वैसा खेले नहीं. गेम अनदर टीम गुड प्ले और बेटर बहुत अच्छा प्ले कर गया. In another interesting duel, Rajasthan faced off the challenge of Uttarakhand, defeating 45-30. Having assured of semi-final berth, Uttarakhand captain Arvinder Singh remains confident, owing to play to their potential tomorrow. डिफेंस के लिए हमारा डिफेंस जम नहीं पाया है. गुंजाइश तो है कि हम सेमीफाइनल में कल जी जान से खेलेंगे. The women's semi-final lineup features undefeated Haryana against Himachal Pradesh in the first semi-final, and Uttar Pradesh will face Uttarakhand challenge in the second semi-final. In today's match in Pool A, Haryana defeated Uttarakhand 49-32. In Pool B, Uttar Pradesh defeated Delhi 51-32. Uttar Pradesh captain Amresh and raider Kirti shared their happiness. अच्छा था जी, खेलना ही था, जीतना ही था, पता था जी जीतना था. बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है. इस बार हमारी टीम काफ़ी अच्छी बनी हुई है, हमने प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से की है. इस बार हमें यहाँ से गोल्ड ही लेके जाना है. In an inconsequential match today, Maharashtra defeated Karnataka in men's and Maharashtra's women team defeated Chhattisgarh. Beach kabaddi demands a unique blend of physical and tactical skills. The winners will be decided tomorrow, with semi-finalists guaranteed at least a bronze medal. The elegance of fencing reached fever pitch today at the Manas Khand Khel Parisar with 2 medals on the line. KD Shukla and Shri Krishna kept track of the attacks and parries. आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में तलवारबाजी की पुरुषों की सीनियर सेवर और सीनियर महिला एपी की प्रतियोगिताओं में 2 स्वर्ण पदकों के लिए अपने कौशल और दमखम को खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से दिखाया. दोनों ही वर्गों में क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं. आज जिसका दिन था वो पदक ले गया. सेवर में कांस्य पदक मिला जम्मू कश्मीर के विशाल थापर और महाराष्ट्र के आदित्य अंगल को. सोने और चांदी के तमगों के लिए जोरदार भिड़ंत हुई. तमिलनाडु के गीशो निधि और सर्विसेज के ओयनम जुबराज के बीच. स्कोर 15-12 के साथ गोल्ड जीता गीशो निधि ने और सिल्वर ओयनम जुबराज के खाते में आया. ये हैं गीशो निधि. बहुत खुश है. अभी मेडल लेने जा रहे हैं. ये मेरा 4th गोल्ड है नेशनल गेम्स में, और आगे अभी ओलंपिक गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एशियन गेम्स के लिए. 2011 नेशनल गेम्स में सिल्वर आया था, फिर 2015, 2022, 23, 25 सब गोल्ड. ओयनम जुबराज अच्छा रहा, पर मेरा फर्स्ट सीनियर इंडिविजुअल मेडल है, पर मैं काफ़ी पहले से ट्राई कर रहा था कि सीनियर में इंडिविजुअल में गोल मारूं, पर हाँ ये थोड़ा बहुत हो गया. पर परफॉर्मेंस से खुश हूँ और कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में और इम्प्रूव करने की. महिलाओं के एपी मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा हरियाणा की प्राची लोहान और हरियाणा की ही शीतल दलाल को. जीत सकती थी, थोड़ा सा और फोकस्ड होने की जरूरत थी. कमी मेरी खुद की गलती थी, मेरा हैंड पुल कर लिया. गोल्ड मेडल पर कब्जा किया हरियाणा की तनिक्षा खत्री ने और सिल्वर से संतोष करना पड़ा पंजाब की ईना अरोड़ा. स्कोर रहा 15-12 का. ये है गोल्ड की चमक के साथ तनिक्षा. थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब ये मेरा 3rd टाइम नेशनल गेम्स में गोल्ड है. मेरा लास्ट 2 टाइम से भी गोल्ड था और अभी मैं 3rd टाइम भी उस चीज को रिपीट कर पाई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. Wrestling fever has gripped Roshanabad, Haridwar, and 6 medals were on the line today. India are one of the world leaders in the combat sport, and some of India's top wrestlers were in the fray. Manish Bhattacharjee and Rajiv Ranjan Tiwari give us this match side update. पुरुषों की कुश्ती में आज 4 स्वर्ण पदकों पर दांव लगी थी. ये सभी फाइनल कल हुए खेलों पर आधारित थे. सर्वाधिक 97 किलो भार वर्ग में दिल्ली के दीपक का मुकाबला था पंजाब के साहिल से. 87 किलो भार वर्ग में हरियाणा के सुनील कुमार के सामने थे सर्विसेज के सुशांत. ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ाई जीती हरियाणा के सुनील कुमार ने. बहुत बहुत बधाई. बाउट के बारे में बताइए, बहुत जल्दी आपने मामला निपटा दिया. मैं तो कॉन्फिडेंस से जाता कि मैंने जीत के आना है. 67 किलो भार वर्ग में सर्विसेज के विनायक पाटिल का मुकाबला हरियाणा के अनिल से हुआ. बढ़िया प्रैक्टिस की थी, इसलिए रिजल्ट मिल गया, वो खुशी हो रही है. कुश्ती के पुरुष वर्ग के मुकाबले देर शाम तक चलते रहे.
रेसलिंग में आज महिलाओं के भी 2 गोल्ड मेडल दांव पे लगे थे। पहला मुकाबला महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग का रहा। फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की शिवानी ने उत्तर प्रदेश की चंचल को 8-1 से हराकर स्वर्ण पर कब्जा जमाया। चंचल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। स्वर्ण पदक विजेता शिवानी। बहुत अच्छी फीलिंग है और बाउट भी बहुत अच्छे रहे हैं। मेरा ये नेशनल गेम्स में 3रा गोल्ड है। सब कुछ ठीक था और जिस हिसाब से हमने सोचा था कि इससे बाउट होने चाहिए, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट रहा और आगे भी यार अच्छा करने के लिए तैयारी करेंगे अब। महिलाओं के 62 किलो भार वर्ग का भी आज ब्रॉन्ज मेडल मैच और गोल्ड मेडल मैच खेला गया। फाइनल मैच में हरियाणा की कल्पना ने महाराष्ट्र की भाग्यश्री को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर परास्त किया और गोल्ड हासिल किया। गोल्ड जीतने के बाद जो खुशी होती है वो तो अलग ही होती है। कल महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में चंडीगढ़ की दीपिका और हरियाणा की प्रिया के बीच फाइनल खेला जाएगा और महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब की राजनदीप और हरियाणा की राधिका गोल्ड के लिए 2-2 हाथ करेंगी। Judokas began their battle for medals and glory yesterday. Today was another busy day on the mat. Sankalp Mishra had a bird's eye view of the ringside action. रजत जयंती खेल परिसर के मोनाल हॉल में आज महिलाओं के 63 किलोग्राम और 70 किलोग्राम भार वर्ग के साथ पुरुषों के 81 किलोग्राम और 90 किलोग्राम भार वर्ग के लिए जूडो की स्पर्धा का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तराखंड की उन्नति शर्मा को स्वर्ण पदक मिला, वहीं मध्य प्रदेश की हिमांशी टोकस को रजत पदक मिला। मणिपुर की इरिंगबाम कल्पना देवी और जम्मू कश्मीर की तलहा फयाज ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता रही हरियाणा की गरिमा चौधरी, वहीं हिमाचल प्रदेश की तखिलांबम इनुगाम्बी को रजत पदक मिला। केरला की देवकृष्णा वीएस और हरियाणा की मोनिका हुड्डा को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। वहीं पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब के हर्षप्रीत सिंह को स्वर्ण पदक मिला, हरियाणा के नरेंद्र ने रजत पदक हासिल किया और उत्तर प्रदेश के अभिषेक चौधरी के साथ राजस्थान के आकाश को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में मध्य प्रदेश के ब्रह्म कुमार वत्स को स्वर्ण पदक हासिल हुआ, वहीं सर्विसेज के अजय कुमार को रजत पदक मिला। मणिपुर के निंगथाउजाम शीतल को जम्मू कश्मीर के रजत सिंह चिप के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। 63 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबला उत्तराखंड की उन्नति शर्मा और मध्य प्रदेश की हिमांशी टोकस के बीच हुआ, जिसका फैसला शुरुआती कुछ सेकंड्स में ही हो गया। जहां हिमांशी ने एक सधा हुआ ओगोशी यानी मेजर हिप थ्रो दांव खेला, लेकिन उन्नति ने उतनी ही खूबसूरती से होल्ड करते हुए उची माता यानी थाई थ्रो लगाते हुए इपॉन हासिल किया। कुछ सेकंड्स में ही बाउट का रुख पलटकर गोल्ड मेडल लाने के बाद उन्नति। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यही मौका है, अगर मैंने उसे अभी होल्ड में ले लिया तो शायद मैं जीत जाऊंगी फाइट, और वही हुआ, मैंने उसे होल्ड में ले लिया। बाउट में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरी मध्य प्रदेश की हिमांशी से कहां गलती हो गई? बस वही, मेरी ग्रिप थोड़ी लूज रह गई, जहां जो मौका नहीं देना था मैंने वही दिया। वहीं पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबला पंजाब के हर्षप्रीत सिंह और हरियाणा के नरेंद्र के बीच हुआ। लगभग बराबरी में चल रहे इस मुकाबले को हर्षप्रीत ने नरेंद्र से कम गलतियां करते हुए जीत लिया। इस जीत को हासिल करने के लिए हर्षप्रीत के दिमाग में क्या चल रहा था? तो मैं सोच के ही गया था कि जीतूंगा ही। पहले भी हमारी बाउट होती है, मतलब तो एक दूसरे का पता था हमें पहले ही। थोड़े वीक पॉइंट उनके चेक करके मारने की सोची थी। Modern pentathlon has been a spectacle to behold in Haldwani, attracting both local interest and success for the hosts. Today was the day of the tetrathlon, and Sanjay Pandey and Kavindra Kumar were our athletes on ground zero. इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉडर्न पेंटाथलॉन के अंतर्गत टेट्राथलॉन प्रतियोगिता आज आयोजित हुई। पहले खिलाड़ियों को तैराकी करनी होती है, इसके बाद फेंसिंग या तलवारबाजी में सिंगल पॉइंट एपी में हर खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ता है और अंत में लेसर रेस में भाग लेना होता है। विजेता का निर्णय इन सभी स्पर्धाओं में पॉइंट्स के आधार पर किया जाता है। आज स्वर्ण पदक पर बाजी मारी 37वें राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता महाराष्ट्र के मयंक चापेकर ने। स्पीचलेस आज कुछ कहना ही नहीं है। बहुत अवेटेड था, बहुत टाइम से इसका ड्रीम देख रहा था कि वापस कम बैक करूं और जो सोचा था वही हुआ। रजत पदक प्राप्त किया हरियाणा के बसंत तोमर ने और कांस्य महाराष्ट्र के सौरभ पाटिल ने जीता। व्यक्तिगत मुकाबलों में महाराष्ट्र ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और इसी के बलबूते टीम इवेंट में महाराष्ट्र ने ही बाजी मारी और स्वर्ण पदक अपने नाम कर दिया। Somehow we managed to clinch team gold medal, so I'm very happy for my performance. टीम स्पर्धा का रजत गोवा को तो कांस्य हरियाणा की झोली में गया। हमारा ब्रॉन्ज आया नेशनल गेम्स में और जो मेरे टीममेट्स थे, एक बसंत तोमर और ये सुमित, हम तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन था। हमारा जो टीम बॉन्ड था, माना हम गोल्ड नहीं ले पाए, बट वी विल फाइट बैक एंड नेक्स्ट टाइम वी विल ऑफ कोर्स विन गोल्ड। Now here's the latest medals tally with Mobeen Ahmed Khan. खेलों के 15वें दिन के अंत तक सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 54 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। महाराष्ट्र 41 स्वर्ण, 51 रजत और 51 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कर्नाटक 33 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य पदक के साथ मौजूद है। होस्ट राज्य उत्तराखंड 7वें स्थान पर मौजूद है।
Day 16 will continue to provide us thrilling sporting moments and spectacles from the 38 national games hurtling towards an epic finish. Tune in tomorrow for the latest news and updates from these games. But for now, it's goodbye from Shaurya Chaudhary. Sporty Dreams. Scripted and narrated by Shaurya Chaudhary. Produced by Mobeen Ahmed Khan and Praveen Chand. 38th National Games, Uttarakhand. You just heard our daily highlights of the 38th National Games 2025. This program was produced by Akashvani Central Production Team at Dehradun.